I don't want to address the minors, but That Drake will do. You are at the right place if you want to know completely about the first year. मेरी गर्लफ्रेंड है, congrats. ब्रेकअप होने वाली ब्रेकअप हो जाएगा हो जाएगा वो यार. College has just one slogan to it, which is survival of the fittest. takes a very high toll on your mental state. There are those pedophile भी हो सकता है, but trust me, don't get into peer pressure. Right. Hey everyone, welcome back to another episode of the Doubles Bond podcast. ये 22nd episode होगा, तू बदलेगा नहीं. मैं भाई ये सिग्मा, और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉलेज फर्स्ट ईयर, बिकॉज हमारा सेकेंड ईयर कल से शुरू हो रहा है. दोनों का एक ही बार शुरू हो रहा है. And yeah, we had to scrap 2 videos before this. I know I have got braces, I can't talk, मेरी दांत अलग अलग दिख रहे हैं, but it'll get fixed. After 1.5. हो जाएगी at least. I hope we cross 100 subscribers at least by 1.5 years. Okay, so firstly, thank you very much for watching episode 21. Itni jaldi, I mean, it's been 2 days since the last episode went out and it already has crossed 75 views. And our analytics say there are no unique subscribers, so we know that you're not sharing the video, तो share करो यार. करो यार. But anyways, आज तू यहाँ पे है to discuss about college first year. So 12th से जो आ रहे हो, I don't want to address the minors, but That Drake will do. anyways, welcome to the channel. Firstly, You are at the right place if you want to know completely about the first year. of course, because हम ज्ञान चोदने गया था पिछले साल फर्स्ट ईयर में भी इस चैनल पे क्या चोदने गया. एक साल से आप इस चैनल पे है, और वो एक साल हो गया क्या? नहीं राउंड अबाउट 3 महीने बाकी है. हाँ, 4 महीने बाकी है एक साल के. 3 महीने पहले भी डिसाइडेड कि हाँ ये चैनल शुरू करेंगे. एंड basically one year before we were in the planning. हाँ, we were in the planning phase this time पे. I was in my first year first sem, ये भी first year first sem में ही था. And since then हमने start किया इस चैनल को. And trust me, I am a very good advice for you. Don't depend completely on the college life. Do something like we do of your Side hustle रख लो. साइड हसल रख लो. ठीक है. जितना कम भी हो, जितना स्लो भी हो, प्लेन भी हो, इट्स फाइन. प्लेन हो, तुम सारे उसको उड़ा दो बेटिंग में, कुछ भी करो यार, मत बस कुछ रखो. कॉलेज के अलावा कुछ ना कुछ साइड में रखो, whether it be alone, whether it be with a group of friends, with a pair of friends, it can be your wish. Trust me, it wasn't so much of a thought before starting this podcast. हाँ. मैं ट्रेन से आ रहा था चेन्नई को, कॉल किया, भाई पॉडकास्ट कर. एक रात को मैंने इसको कॉल किया ऐसे, भाई वी शुड रिलीज अ पॉडकास्ट. दूसरे दिन ये ट्रेन में था, ये वापस आ रहा था चेन्नई. He was like, नहीं भाई, कल आता हूँ मैं तेरे घर, तेरे पास सब इक्विपमेंट है, हम करते हैं. We started off with one laptop and another phone. हाँ, But then we went to three angles. Editing के लिए tough हो रहा था. It was not looking so professional either. So we shifted to 2 angles now, which you're seeing right now. But anyways, you are here for college tips 101, I guess. And अगर तू 12th में है, तेरी गर्लफ्रेंड है, congrats. वो ब्रेकअप होने वाली ब्रेकअप हो जाएगा. वो रहेगी. और अगर नहीं भी हुई तो हो जाएगा. तो कॉलेज में एक लड़की मिलेगी, वो तेरा काट के चली जाए. फर्स्ट ईयर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट हैव टू मच स्टडीज. तेरा जो टाइम जाता है, तेरा जो यूजुअली यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टडीज इन 12th grade especially, you don't spend that much in first year. Not like you don't spend that much in first year. तेरा मन नहीं लगता. मन नहीं करेगा. हाँ, तो you have a lot of time. तेरे पास बहुत टाइम है. यू वुड एक्सपेक्ट कि भाई अब कॉलेज में जा रहे हैं, अब होगा भैंचो पढ़ाई नहीं होगा कुछ. ठीक है, तुमसे सिर्फ यू हैव टू स्प्लिट योर टाइम टेबल बेस्ड ऑन तेरे कौन से सब्जेक्ट है, या कौन सा कोर्स है, या इंजीनियरिंग या मेडिकल या कॉमर्स, जो भी हो. अकॉर्डिंग टू दैट
if you get modified, it's basically, देखो यार, college has just one slogan to it, which is survival of the fittest. तू अगर fit रहेगा तो survive करेगा. तू फिट अगर मतलब बॉडी बिल्डर वो वाला हाँ वो नहीं, वो कर सकता है तू जिम जाओ. बट उसके अलावा भी तू अगर ये सब शेड्यूल्स में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो फैकल्टीज हो, इन सब में अगर तू यू हैव दिस लाइक गियर्स शिफ्टिंग इन द प्रॉपर टर्न इन, यू विल बी द फिटेस्ट, यू विल सर्वाइव. आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं. मेन थिंग इज दैट don't depend too much on your friends because it's your first year, at least for the first sem. Because first sem में बहुत सारे लोग you expect कि नहीं यार ये दोस्त बन जाएगा, and then आधे महीने बाद you realize कि ये तो चूतिया निकला. तो तू फंसेगा वहाँ पे, वो नहीं फंसेगा because उसको पता था कि तू चूतिया है. वो आया, उसका मोटिव था तुझे चूतिया बनना और उसका मोटिव तूने सक्सेसफुली कर दिया. Right. So that is the one thing. Don't depend on a single person. Point of focus उतना भी छोटा मत रखो कि एक ही बंदे पे सब डिपेंडेंट रखना है. Keep it like a friend group, a friend circle. Because if you don't, then अगर एक ने तुझे fox कर दिया, you will be fox the rest of the 3 years. You can't have a lot of friends after that also. And one more thing, don't keep boundaries. Let yourself open to everything. Because that is what college is. तो बाउंड्रीज रखेगा, सब तुझे चूतिया करके छोड़ के चले जाएंगे. हाँ वो तो of course. वो तुझे चूतिया बनाना, जब तू चूतिया दिखेगा तब. तू अभी तक 12th में था, 12th में अगर तूने ये सब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो तू कॉलेज में आके वो सब एक्सपीरियंस करने ही वाला है. नॉट लाइक यू आर नॉट गोइंग. जस्ट दैट इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट इन 12th, you know where to place yourself in college first year, and उस हिसाब से you can keep a good bonding between who you place with and where you place yourself amongst. तो वो एक है. Secondly, the fact that अगर तेरी गर्लफ्रेंड है, keep it simple. Don't for heaven's sake keep it emotional. Because तू अगर emotional रखेगा, वो अगले सेकंड तुझे छोड़ के चली जाएगी. ठीक है, हमारे 4 वीडियोस है, वो टोटल रिलेशनशिप एडवाइस पे 4 वीडियोस है हमारे, जाके ऊपर देख ले, प्ले लिस्ट है पूरी बनाई हुई. उसमें से सारे वीडियोस में हम यही बोलते हैं कि मत करो, हमारे लिए नहीं है. अगर तू बहुत स्टडी फोकस्ड है, स्टडी ओरिएंटेड है, तो तू प्लीज़ मत पढ़ इस सब में. हाँ, डेटिंग वेटिंग चलता रहेगा, वो सब करते रहे. रिलेशनशिप में मत पढ़ियो, बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर मार्क्स, एंड देन पापा मम्मी जो घर पे तब तेरी लगनी है. सेम वो भी. अगर तुझे लगता है ओके दिस इज मेनली फॉर द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब देख हॉस्टल्स में रहने वाले, you are going to have the best time in your life. Because I have been a hosteler. हाँ. पहले 11th और 12th क्लास में ही जब restrictions इतने ज़्यादा थे, I have had the best years there. वो वाला एपिसोड यहाँ जाके देखना. और तू कॉलेज के हॉस्टल में भाई, you're gonna have the most fun because देख diversity होगी 100%. Unless and until you're going to go some jack shit college, like probably God knows but if you go to some jack shit college or something, you wouldn't get any fun there. But if you're coming to some college like my college or his college, जो पहले हमने mention किया है, ठीक है, अगर if you're going there, you will have the best fun. And if you're going to colleges in Bangalore, you will have so much fun. But trust me, you'll be broke in 2 days. Trust me. Of course. एक तो है कि तेरा कॉलेज तूने अगर सिलेक्ट नहीं किया अभी तक, तो कर क्या रहो, चूतिया है क्या. प्रॉब्ली ड्रॉप लेगा, छोटा है. बट अगर तूने लिया है तो आई होप यू आर सैटिस्फाइड विद योर चॉइस, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं होते एंड इट्स प्रीटी कॉमन. एग्जाम्पल पहला वाला यही है. ठीक है, तो आई डोंट ब्लेम यू इफ यू हैव चोजन द रॉन्ग कॉलेज एंड बीन लाइक भाई फक. डेस्टिनेशन टू ऑलवेज एम हाई करता है. हाँ, और वहाँ तक रीच होना बहुत मुश्किल है. एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब मैं सोच रहा था
IIT कर ले वो तो सभी this especially your batch I mean I'm addressing the 24 के 24 जो अभी हाँ 24 हाँ जो ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट नहीं बिगिनर फ्रेशर फ्रेशर हाँ जो अभी 24 में फ्रेशर्स बन रहे हैं उनके बैच में तो देर हैव बीन अ लॉट ऑफ नीट एंड जेई रिलेटेड इश्यूज तो हम तो उसको एड्रेस कर लेने वाले तुम्हें ज्यादा पता है हमसे से गांड मार तुमसे ज्यादा तुम्हें ज्यादा पता है हमसे हमें कम पता है बिकॉज हम हमारे वक्त में इजी था जेई ठीक है दो इट वाज जस्ट 1 ईयर इट वाज इजी मतलब लाइक देयर वाजंट इश्यूज सिस्टम तो उस हिसाब से देखो अगर तुम तलवे चाटते हो तलवे चाटते रहो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैकल्टीज के तलवे चाटना अच्छा हो जाता है ठीक है जो लोग करते नहीं है 12th तक वो भी कॉलेज में आके वो कर लेते हैं ठीक है और जो लोग 12th के पहले भी कर रहे थे वो भी कर रहे हैं और जो जो करते थे वो बंद कर देते हैं and mostly I'll tell you one thing you study 1-2 days before the exam it's more than enough मैं तेरा जो ये 12th का बीइंग परफेक्ट आईआईटी वाला सेल्फ था वो थोड़ा निकाल दे तेरे माइंड से बिकॉज क्लास एवरेज ही 25-26 के आसपास आता है 50 के ऊपर तो इसके कॉलेज का इस ईयर का स्टैंडिंग बॉडी नो नॉट स्टैंडिंग ईयर का कॉलेज प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट इज 7 CGPA with 2 standing areas देख सीजीपीए का तो तू ज्यादा ले दो छोड़ ठीक है फर्स्ट सेम का हो जाएगा तेरा जितना तुम पढ़ता है उतना फर्स्ट सेम में आ जाएगा सेकंड सेम में तुझे जब पता है कि तू कहाँ है कितना तेरा फ्रेंड सर्कल है या जो भी है तब यू डिसाइड मोर अपॉन सीजीपीए एंड मार्क्स एंड ऑल दैट फर्स्ट ईयर इज द ईयर यू डोंट हैव टू केयर मच अबाउट क्योंकि मतलब सारे सब्जेक्ट जो कुछ भी आते हैं वो पहले वाले आते हैं ठीक है मैथ ही बस थोड़ा इधर उधर हो जाता है केमिस्ट्री पढ़ लियो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में गांड मारने वाली है वो ठीक है आई डिड हैव टू स्टडी मेरा टीचर इतना अच्छा था सब मार्क्स दे दिया देख ले टीचर के हिसाब से देख ले और ना भी देखे तो वैसे भी देख ले केमिस्ट्री बस हंसने लगने वाली है ठीक है एंड हाँ मोस्टली सब्जेक्ट्स पहले वाले आएंगे तो देख CGPA इस साल मोस्टली सबका कम होता है हाँ सब मोस्टली फर्स्ट ईयर सबका कम होता है अगर तेरा भी कम है इट इज़ फाइन इफ यू आर अबव 7 to 7.5 इट्स कम्प्लीटली फाइन फिर सेकेंड ईयर से सारे सब्जेक्ट्स दे फॉल डाउन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉल डाउन फर्स्ट ईयर तुझे सारे लैब्स और ये सब मिलाएंगे तुझे 8 से 10 कुछ तो होंगे ठीक है सेकेंड थर्ड से आ जाने तो दैट इज बेसिकली सेकेंड ईयर 5 तक गिर जाएंगे और तब सब्जेक्ट्स भी थोड़े मतलब हार्ड होंगे बट कम तो होंगे टाइम तो होगा तुझे प्रिपेयर करने के लिए सेकंड थर्ड में मैनेज हो जाएगा फर्स्ट वाला तो लाइट ले इट्स फाइन गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट तेरा कोई सगा नहीं है ठीक है तो जहाँ जाएगा तो अकेले है यू हैव टू फाइट बाय योर ओन यू हैव टू सर्वाइव बाय योर ओन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेसिकली टीचर ही बन गया हम इस पॉइंट पे स्पून फीडिंग नहीं होने वाली तेरी ठीक है जो 12th में तुझे टीचर बताते थे वो हम जरा लेस फॉर्मल वे में बता रहे हैं यूट्यूब इज गॉड कुछ भी सीखना है यूट्यूब पे चले जाओ वो तो है वो तो 12th में 11th-12th में तुमने देखा ही होगा videos ही is the next way of learning whether it be about engineering whether it be medical everywhere videos are the thing to go for relationship में मत पढ़ियो दैट इज जनरल ये लोग पढ़ेंगे छोड़ दे तुझे अगर लगता है कि you put this in the first 5-10 minutes like 5-10 seconds तुझे अगर लगता है कि you don't need this video guess fuck हमें क्या प्रॉब्लम है हम तो तुझे ज्ञान बांट रहे हैं हम सोच नहीं रहे हैं एंड ट्रस्ट मी तुझे जितना आसान लगता है उतना आसान कुछ नहीं होता नहीं कॉलेज में इट इज़ वेरी हार्ड कॉलेज इट इज़ हार्ड इट टेक्स अ वेरी हाई टोल ऑन योर मेंटल स्टेट मेनली बिकॉज तेरे जो फ्रेंड्स होते हैं 12th तक वो तुझे पता होता है कि यार चल चिंटू बगल में रहता है बंटू साथ में रहता है साथ वाली गली में कॉलेज में जाते ही बंटू कहाँ तू कहाँ चिंटू कहाँ ऐसे करते करते तेरा जो मेंटल स्ट्रेस फ्रेंडशिप नेचर रिलेशनशिप नेचर जो भी हो
that gets completely screwed over. And So it's like, and there are certain sort of people जो मैंने देखा है, ठीक है, these people who stick to their 12th class friends और पिछले वाले friends, हाँ, ठीक है, ये college को आते हैं, if they don't, you know, settle well, yeah, they end up calling the बंटू या चिंटू, ठीक है, और वो लोग बंटू चिंटू अच्छे अपने मजे कर रहे हैं, हाँ भाई, अच्छे अपने मजे कर रहे हैं वहां पे, हाँ, so they don't actually try talking to you because they're Talking, busy yeah, setting up that's their environment there, and you think you're alone, but basically you're not. you become sticky. Yes. For a friend, you become sticky and you don't want, trust me, you don't want to be there. Because वहाँ पे तू अगर होगा तो वो 2 मिनट में तेरा काट के ले जाएगा, वो he'll stop talking or giving you more time. And उस हिसाब से like तू तेरा देख ले. Of course, hostelers, whoever are going to the hostel, we don't need to tell you a lot because you have already decided the fact that you're going to live alone without your parents. And sometimes That's the best thing in this world, trust. तेरी सारी चीजें तू सब खुद से ही करने वाला है, तो हमसे तो कुछ we can't address more to you. हाँ, hostelers have a good life compared to day scholars, compared to the people who live away from the college. Was रोकने वाला कौन है? सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी ना आके हमें देखने वाला, देख सकता है, आई एम नॉट सेइंग देखेगा नहीं, उसका काम वही है, बट कितनी बार देखेगा. और इफ यू गेट लो मार्क्स, वैसे वाले थॉट्स मत लाओ, ठीक है, जो ऊपर जाके टेरेस पे जाके वो मत लाओ. डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेरेस खुला नहीं होता, कॉलेज में काम कर लो. Colleges में, I tell you one thing, if you have that sort of mindset during the first year or whenever during the 4-5 years or whenever how much you're studying, you will be hated more than sympathized after you go. That is कि तेरा जैसे कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कॉलेज नहीं लेगा, बट लोग मारेंगे, लाइक लोग will start tell you one thing, क्यों कर रहा है and all that stuff. I tell you one thing, ठीक है, many को unless until you jump off the terrace and everybody sees you, वो अलग बात है, but if you actually you know Do it in solitude. do it in the room or something, trust me, किसी को पता भी नहीं चलेगा. News also wouldn't come out because college will try to keep everything washed. हाँ, वो है, colleges hide that sort of There stuff. has been a case in Ramaiya, I don't know the name, I'm not taking names, I don't really know the name. बैंगलोर का एक कॉलेज था, Okay. ठीक है, यू नो वहाँ एक ऐसे ही हुआ था. न्यूज़ डिडंट कम आउट फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर व्हेन पेरेंट्स जब जाके हल्ला वल्ला किया तब पता चला सभी लोगों को, क्योंकि ऐसा हुआ है. ट्रस्ट मी, द कॉलेज विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सुसाइड, योर सुसाइड जस्ट गो इन वेन. Exactly. और ट्राई भी मत करो, बस उसके लिए भी अलग जेल के चार्जेस like है. Finally, Drinking and all is not allowed on campus. Smoking is also not allowed on campus. You should be knowing it already. ठीक है, अगर कुछ करना है तो बाहर जाके करो. दैट इज बेसिकली इट. कुछ काम अंदर मत करो यार, डिटेन हो जाओगे, बाहर निकाल देंगे, उसमें पैसा वैसा भी नहीं दे सकते. ज़्यादा से ज़्यादा stay away from all of this. Yeah. The thing is, currently, like, I don't know since how long, but हमारे केसेस में, तुम्हारे केस में जो लोग कॉलेज फ्रेशर्स हो, तुम्हारे केसेस में you get this sort of anti-ragging form, which trust me it works in the favor for freshers जो लोग आ रहे हैं, because I can't imagine getting into my college without the form. It doesn't really लग जाती matter. भाई. So it doesn't really matter about the form, right? Because like there's a disciplinary committee in the college itself which takes care of all this. So ragging नहीं होगा. Ragging is something what Unless तू क्या कॉलेज में, हाँ, तू बड़े बड़े कॉलेजेस में आ जाता है तो वो सब फॉर्म्स केस में आ जाते हैं. yeah, and plus everybody knows ragging is waste of time. Even senior को पता है, when you can use the same time, you know, to get to do some chill stuff, हाँ, they prefer that. The people who do ragging, jokes on you, you're the joker there. and basically survival of the fittest. I can't submit something Yeah, so trust me, proper. I'll tell you one thing, don't be scared of your seniors. ठीक है, वो कुछ करेंगे नहीं तुझे. अगर कुछ करने के लिए भी आ गए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो तुझे.
ये तेरा गोल्डन पीरियड है, ठीक है। तू कॉलेज में जा रहा है, तू फ्रेशर है, people celebrate you more. It's like the time when you entered from 5th to 6th grade, जब तेरी पैंट हाफ से फुल हो गई थी। अब ये तब का सिचुएशन है, ठीक है, जब यू नो दैट यू आर गोइंग टू स्कूल की भाई हम 6th ग्रेड में जा रहे, पूरी पैंट आ गई बेंच। ऐसा स्टेट है तेरा, गोल्डन एरा है तेरा। हैव फन, एक ही साल है, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट टू लॉन्ग। फर्स्ट सेम में जो तू सीखेगा वो सेकंड सेम में इम्प्लीमेंट कर, ठीक है, और सेकंड सेम में जो इम्प्लीमेंट करेगा वो सेकंड ईयर में इम्प्लीमेंट कर। दैट इज हाउ बेसिकली कॉलेज वर्क्स। एंड जब मजे कर रहा है फर्स्ट सेम में, जो जो लोग मजे कर रहे हैं वो दिखेंगे तुझे, तो सेकंड सेम में उनके मजे करेगा, वो कुछ और कर रहे होंगे। वैसे जस्ट मूव विद द फ्लो और इट वोंट You meet a lot of different type of people. तेरा दोस्त pedophile भी हो सकता है, but trust me, don't get into peer pressure. ठीक है, be yourself. तेरे हैबिट्स, तेरी चीजें अपने पास रख, हाँ। प्रेशर में आके कुछ मत कर। have fun in college first year. There is nothing डरने की कोई बात really scary about colleges. As much as you might have experienced it through all these NEET and JEE wale experiences, And it's one not more that thing. scary. One more thing, ठीक है, very simple line to define the whole college thing. You don't have to be too scared. That will be very bad, and you don't have to be too happy like some Karan Johar ka movie. It's just a fucking college. You go there, do your fucking business, come back. That's it. Best thing, mind your own business. तेरा हेडफोन लगा तो तेरा एयरपॉड लगा, जो भी लगाना है, इन ईयर आउट ईयर ओवर ईयर जो भी लगाना है लगा, गाने सुन, तेरा तेरा माइंड कर बिजनेस। अगर किसी को तेरे से बात करनी हो वो खुद आएगा, वरना अगर किसी को तेरे से ना बात करनी हो वो खुद उसका माइंड इज ऑन बिजनेस, यू विल माइंड योर ऑन बिजनेस, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट्स हाउ फर्स्ट ईयर मेरा पूरा वैसे का वैसा ही गया। द पीपल हु वांटेड टू टॉक टू मी केम टू मी, द पीपल हु डिडंट वांट टू टॉक टू मी स्टेड अवे फ्रॉम मी। मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। इफ यू गो, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज जो जाके काटता है, हाँ। स्टिकी बेसिकली, मैंने जो पहले बोला था वो स्टिकी, कि यार मिलते हैं ना, यार ये करते हैं ना, यार चल 50 रुपए ट्रीट दे दे, बर्थडे है ट्रीट दे दे। दैट इज स्टिकी, यू डोंट वांट टू बी देयर। एंड ऐसे लोग मिलेंगे तुझे बहुत सारे, trust me, 70% of your college is going to be like that. 30% of the college is like कि मैं करियर पे फोकस करने आया हूँ, मैं अपने आप पे फोकस करने आया हूँ, मैं इन सब चीज़ों में, रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो, इन सब में नहीं इंडल्ज होने वाला है। 30% will be like you if you listen to this episode properly and took a few notes at least, and the rest 70 will be sticky. So all the best with your college. Videos देखते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो। Peace out. पापा